Okay, so hello everyone. Welcome back to our 25th workshop of Machine Learning Zero to Hero program. So today we're gonna build image classifier, image classification program, just a very basic one. The very basic one in the neural networks. We're not gonna involve in convolutional things and those kind of hard trouble things. The reason behind this basic workshop is because just warm up your just classification skills with neural networks. अभी तक हमने classification नहीं करी है. Oh my god, that plane is causing so much noise. Sorry for that. Okay, so अभी तक हमने classification नहीं की थी neural networks के अंदर, but now we are doing classification by using some images, not the textual data right now. But it will be a very basic one. Okay. अच्छा, ये जो आज हमारी नोटबुक होगी ये भी MIT की गूगल की ही नोटबुक है जो कि MIT से लाइसेंस है. You can also upload it your on GitHub and by just changing the by just mentioning the license, it's copyright by Google. All right. तो ये गूगल की ही है and we can use it wherever we want, but to mention copyright is necessary. Okay, what we're gonna do today? Let's just chit chat first for 1 to 2 minutes. We have learned so many things after basic machine learning, like after regression, after done classification, we done clustering, and then we jump up towards neural networks. We have built neural networks from scratch as well. We have see hello world, we have on neural networks, we have seen regression on neural network, which is pretty good in it. But what type of classification will look like in a neural network? It won't be just too difficult right now for us. But why the idea behind this workshop is ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है, because I was just thinking to brush up your guys and make you some warm up before we get into some hard and complex workshop. I'm planning to do some like facial learning system as well if we have some time in future. वो पार्ट एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम के अंदर मतलब इट विल नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू न्यूरल नेटवर्क्स, but because we are having one gap and I'm trying to filling it up with some interactive workshop by the end, so you will be able to show any project to your family as well. Oh guys, I have made any facial recognition system. Yeah, that's a swag, that we have to accept that. So हम देखते हैं क्या करेंगे. So I'm trying to best to deliver right now for basic image classification. Then maybe we have some basic text classification as well. These are the seeds, like seeds for a trees, and what a trees are. ये seeds हमारी trees के लिए हैं. Like basic image classification is a seed for a computer vision, and seed basic text classification is a seed for the like you can say natural language processing, and some more things are on the way as well. We are not getting too far right now. तो ये हम दो workshops करने के बाद we may see convolutional network as well if we have time, but we have to end this entire program within 1st November. All right, let me know in the comment section below that will you guys be able to attend workshop on 12th April or not. Because if you will be available, so I'm gonna come. If you guys are not able, so I'm not gonna come. So please guys, let me know if there is a majority which can come in a workshop which is being held at 12th April. So I can give facility to those other guys which are not available right now, because some people have mirads and different ceremonies at their homes and setups. So I will give them facility that they can register, they can RSVP, and they can learn on YouTube within 1 day or 2. So let me know. All right. So first, before starting, I have been suggested to give you an overview of TensorFlow and Keras, a brief overview. देखिए like थोड़ी बात कर लेते हैं. आज 8:15 तक आज हम बात करेंगे, ठीक है? इतने कुछ बंदे आ जाएंगे because I'm seeing the low amount of attendees right now. So 15 for example हमारे पास 15 फ्रेमवर्क्स हैं जो मैं कहता हूँ जो AI इंजीनियर्स की जिंदगी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. आई एम गोना टेल यू इन द लास्ट इवेंट और मे बी शेयर इट इन डॉक. TensorFlow is just a library, okay? TensorFlow is a framework. अब TensorFlow क्या है, इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत पहले बताया, जब पाइथन के अंदर अगर पहली कोई अच्छी लाइब्रेरी आनी शुरू हुई थी फॉर AI, सो इट वाज केरास, ठीक है ना? केरास एक अपना एक फ्रेमवर्क था, अपना एक टूल था फ्रॉम विच वी बिल्ड न्यूरल नेटवर्क्स. उसका काम सिर्फ यही था दैट वी कैन बिल्ड न्यूरल नेटवर्क्स फ्रॉम दोस. Now, TensorFlow is a framework. TensorFlow is basically based on some sort of engine which is doing some sort of tensor programming. Tensor programming के बारे में मालूम हुआ है?
अगर नहीं है तो बता देता हूँ। इन नट शेल अगर हम बात करें, सो टेंसर आर बेसिकली द ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एरेज। बेसिकली हम जितने भी न्यूरल नेटवर्क बना रहे होते हैं उनकी तमाम कैलकुलेशन टेंसर बेस्ड होती है। इधर वी आर यूजिंग पाइटॉर्च और इधर वी आर यूजिंग टेंसर फ्लो। All calculation are based on tensors, ठीक है। That is why GPU have facilities to accommodate those heavy tasks, because वो tensor भी होते हैं and GPUs are more likely towards to tensors. They know how to handle tensors because every core is designed to deal with tensor. That is why it's known. We call it tensor cores. Now, what is the difference between TensorFlow and Keras? We all know about what is PyTorch. PyTorch and TensorFlow are both the same frameworks, but but with the different identities. PyTorch is owned by Facebook and TensorFlow is owned by Google. So PyTorch is also very good framework, and TensorFlow is also a very good framework. But both are equivalent in their own sense. Now, what is Keras? So basically, Keras is just like a chunk of you can say methods and libraries from which we are acquiring different more methods. TensorFlow का ही पार्ट है। अब Keras के अंदर ना जैसे मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ कि टेंसरफ्लो एक फ्रेमवर्क तो है हमारे पास, लेकिन टेंसरफ्लो हमारे पास IoT में भी होता है, मोबाइल में भी होता है, MLKit के नाम से भी होता है इन फ्लटर एंड कॉटलिन एंड हमारे पास कहाँ कहाँ और होता है, आई एम नॉट हार्ड टू रिमेम्बर नाउ, और कंप्यूटर में होता है और सर्वर सेशंस में भी होता है। So what is the role of Keras? Keras is basically an working like an API. अब working like an API, what the mean of working like an API? ये मैं एक नक्शे से बताना चाह रहा हूँ। Keras is working like an API which is based on TensorFlow, TensorFlow's local host. समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। Let me share my screen as well. Then it will become more engageful for you guys. Just hold on a second. I just thought, okay, it's a very channel on the Rara, which is going to be very big for you. Okay, all right. So let me open an image for you to explain it. कोई अच्छी image हो? Yeah, there is. So this is the perfect diagram. I can see. Let me explain this a little bit. So TensorFlow is the entire framework, ठीक है। हमारे पास पूरा एक फ्रेमवर्क है। Keras is just an API, ठीक है ना। Keras एक API is used like an API. अब इसका फर्क क्या है, ये आप ग्राफ देख रहे हो, दैट हाई लेवल ट्रेनिंग APIs, हाई लेवल आर्किटेक्चर APIs, और उसके अंदर Keras आ रही है एंड देन देयर थिंग्स। इसके अभी बिल्कुल ना मजीद डिटेल में मत जाइएगा, ठीक है। आपको सिर्फ टेंसरफ्लो और Keras के बारे में समझना है। ये Keras अगर यहाँ प्लॉट हुआ हुआ है या टेंसरफ्लो यहाँ प्लॉट हुआ हुआ है तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, अभी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अब मैंने आपको कहा था बहुत पहले कि हमारे पास सिक्वेंशियल API होती हैं और फंक्शनल API होती हैं और हाई लेवल API होती हैं जो कस्टमाइज्ड मॉडल्स को बनाने के लिए, कस्टमाइज्ड लेयर्स को बनाने के लिए काम आती हैं। आई टोल्ड यू दैट इफ यू रिमेंबर, if in case you didn't, so I'm going to tell you again. तो हमारे पास ये तीन तरह की लेयर है for now this entire program. For machine learning program we're going to work on sequential and then we're going to jump to functional if later on if we have time in machine learning, or of course in deep learning में ज़्यादा काम करेंगे functional API के अंदर. So Keras is basically an API integrated with this architecture known as TensorFlow. TensorFlow is like an architecture. It is like an engine. It is like an लो लेवल अंडरलाइंग लेयर जिसके ऊपर टेंसरफ्लो काम कर रहा होता है। तो टेंसरफ्लो के अपने जो कोड्स हैं वो बेसिकली C++ में लिखे होते हैं। दोस इंजन्स आर बिल्ड ऑन C++ एंड Keras is used to fetch those things from TensorFlow. Keras is working like an API. A local host API कह लें या low level API कह लें, but don't mix up this with low level and what is high level training API because this is going to be very advanced for you right now. So I hope कि आपको TensorFlow Keras के बारे में डिफरेंस का आइडिया हो गया होगा। All right. All right. We are available. Many students have said we are available. I want to get some more reviews. These are just 10, right? 10 people have said that we are available. I want to get some. There are so many people here. I want to get some more reviews. That do you really
want to attend workshop on 12th Rabiul Awwal night and day as well. देखिए रबीउल अव्वल मगरिब से स्टार्ट होती है, मगरिब पे खत्म हो जाती है, तो मैं उस वक्त की बात करूँ जब जब स्टार्ट होती है। खत्म मगरिब पे खत्म होने के बाद तो वैसे ही 8 बजे होंगे, तब मैं ले लूंगा, वो तो ऑफ कोर्स लेनी है। बट व्हेन इट गोना स्टार्ट आफ्टर मगरिब, will you be available or not? Even though myself I do have some prayers, so that's why I'm asking fully if you are guys fully available, so let me know. All right, so now we're gonna switch to our थोड़ा सा हमने ओवरव्यू ले लिया टेंसर क्लास का, हमने ओवरव्यू ले लिया कि आज हम क्या करेंगे, हमने ओवरव्यू ले लिया आगे जाके हम क्या करेंगे। अभी 4-5 दिन जो हमारे रह गए, लास्ट के 2 डेज हमारे रिकमेंडेशन सिस्टम पे जाएंगे, बिकॉज दैट इज वेरी लॉन्ग, इट्स वेरी इजी बट इट्स वेरी लॉन्ग। उसमें ना प्री प्रोसेसिंग का स्टफ बहुत ज़्यादा शामिल है, बहुत ज़्यादा शामिल है, तो वो एक दिन तो हमारा प्री प्रोसेसिंग में निकलेगा और एक दिन हमारा प्रोडक्शन में लगेगा। सो अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दैट आफ्टर दिस मशीन लर्निंग प्रोग्राम आई एम प्लानिंग टू डू सम events on Flask, like 2 to 3 events before starting deep learning program. So with that, you will be highly able enough to deploy your machine learning models. But there is one more strategy here. Deploy आप लोकल होस्ट पे कर सकते हो, नोट ऑन क्लाउड, नहीं तो उसके लिए प्री क्लाउड कंप्यूटिंग सिखानी पड़ेगी, एंड दैट आई एम नॉट हैविंग दैट टाइम फॉर राइट नाउ बिकॉज दैट इज ऑलरेडी प्लान्ड आफ्टर डीप लर्निंग प्रोग्राम, जो कि जनवरी में हम इंशाल्लाह करेंगे। And cloud computing is right now expensive. I'm not sure that everyone will be able to afford it right now or not. Okay, so I have already uploaded this to this repository. You can access it from my अगर मुश्किल होती हो ना बार बार खोले तो फॉक कर लें, you can access it every time. Okay, आपके पास भी मेरी repository आ जाएगी। Alright, तो यहाँ पे हमारे पास सेम सही है, खुल गई है। अच्छा, एक चीज़ का मैं ओवरव्यू दूंगा, डेटा प्री प्रोसेसिंग हमारे सेकंड वर्कशॉप। देखें आज हमारी 25th वर्कशॉप है एंड स्टिल वी आर गिविंग दी ओवरव्यू ऑफ आवर सेकंड वर्कशॉप। ठीक है, अब सेकंड वर्कशॉप के अंदर ओवरव्यू का देने से मकसद मेरा मतलब क्या था, लेट मी टेल माई फेलोज दैट आई एम यूजिंग इंटरनेट, प्लीज डोंट प्ले गेम्स, इट्स टू लैगिंग। ऑलराइट, तो ओके, राइट, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड वर्कशॉप पे हमने क्या किया था, लेट मी सी दैट। ओके, राइट, सो हियर वी कैन सी दैट इन दिस सेक्शन इमेज प्रोसेसिंग यूजिंग स्काई इमेज, हम यहाँ क्या कर रहे होते हैं दैट वी आर गेटिंग सम इमेज विद डिफरेंट रेजोल्यूशंस एंड देन वी आर कन्वर्टिंग these images into grayscale images, and then we are converting this into some specific sort of resolution, because machine learning का आपने जो input दे दिया आप अपनी image पर उसी resolution पे ही दोगे, and you cannot share any type of resolutions there, so you have to be very much specific. All right, so एक्सक्यूज मी। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ चीज़ें थी जो हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, यहाँ पे हम लोग आज ये काम नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डाटा पहले से ही प्री प्रोसेस्ड है, आज हम प्री प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, आज हम सिंपल क्लासिफिकेशन देखेंगे। मे बी होप सो इन द कमिंग डेज वी मे परफॉर्म सम एडवांस क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पे कर लेंगे प्री प्रोसेसिंग, नो मैटर्स। ऑलराइट, ओके, सो हियर वी आर जस्ट इंपोर्टिंग सम लाइब्रेरीज, यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है, यू कैन रीड दिस थॉरोली अलोंग साइड और लेटर ऑन। अच्छा, यहाँ पे मैंने वर्जन प्रिंट कर दिए, दैट रीजन इज के ताकि मालूम हो दैट व्हाट वर्जन ऑफ पाइथन वी आर यूजिंग हियर एंड व्हाट वर्जन ऑफ टेंसरफ्लो वी आर यूजिंग हियर। अयान हैज गॉट अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, आई वाज looking for that on Stack Overflow. I hope he still has the same problem because मैं उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल नहीं रहा था, but I'll try to see it कि क्या है कि why TensorFlow is not installing in the system. So don't worry Ayan if it still exists. यहाँ पे हमने TensorFlow को import कर लिया, then यहाँ पे TensorFlow को तो कर लिया लेकिन हमने Keras को नहीं करा है। ओके, एक ही बात है, जब भी हम करना होगा तो tf dot Keras कर देंगे। Then we are importing here import numpy as np, we are importing matplotlib.pyplot as plt. Yeah, we are not importing pandas here, the reason is there is not such requirement here right now, इसलिए यहाँ लिखा हुआ नहीं है। And then here we are using print tf dot underscore version underscore then python dash version। तो ये क्या कर रहा है, हमारे पास पाइथन का वर्जन भी मालूम हो गया और टेंसरफ्लो का वर्जन मालूम हो गया, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है।
workshops. All right, so let's just understand about the data, what the data is all about. So this guide basically uses the fashion MNIST dataset, which contains 70,000 grayscale images in 10 categories. So this image shows individual articles of clothing at low resolution, 28 by 28 pixel as senior. ठीक है, अब यहाँ पे हम हो क्या रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो we are having 10 types of different images. In first you can see we are having teas. So let me zoom in. You might be saying, sir, we can't see. So there are so many planes coming around here right now. I guess army is so active right now. So these are our tees. In a very first category, we are having some trousers or maybe pants. In our second category, then we are having some hoodies. In our third category, you can say glass as well. Then again, we are having some sort of tees. Then again, tees. There may be different type of tees. I can see these are some women fantasies, some women's sort of clothes. I don't remember the different kind of the names of different kind of women clothes. They are having so many types of clothes. So right, so here we are some jackets, I guess. So I don't know. यहाँ already given है कि किस कौन कौन सी category, like you can see sandals, shirt, sneaker, trouser, t-shirt. We have divided every single thing in a different kind of sort. टी शर्ट को अलग कर दिया, ट्राउजर को अलग करा हुआ है, पुल ओवर को अलग करा हुआ है, ड्रेस को अलग किया हुआ है. अब ड्रेस, व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दैट? लेट मी सी. ओके, 0 1 2 3. All right, so in this fourth category we are having the maxis and some this kind of dresses which are very long, so they have mentioned them as dress. तो खैर हमने ड्रेस देख लिया अपना. We are having sneakers, shoes and whatsoever. यहाँ पे हमें बता रखा है दैट बट किस क्लास के अंदर हमारे पास कौन सी लेबल्स है. ये लेबल हमें खुद असाइन करने पड़ेंगे क्योंकि हमें ये डाटा सेट के साथ मिला है, हमारे पास मौजूद है. इफ यू वांट टू एक्सप्लोर डाटा सेट ऑन दिस ओरिजिनल वेबसाइट, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस लिंक एंड गो टू दैट व्हाट्स सो कॉल्ड, यहाँ पे हो कहीं ना कहीं लिंक, ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा फैशन एमनेस्ट पे, यू कैन लिंक टू दैट वेबसाइट. Okay, all right. So इसको डाउनलोड करना बड़ा आसान है because it's already in a API of tf.keras और dataset.fashionMNIST. मतलब आपके पास अगर tf.keras और datasets mention है, so you can download this dataset. ये अगर आप TensorFlow class डाउनलोड करते हैं तो it doesn't mean that this data will going to be download. ठीक है ना, इसका मतलब ये कि ये इसके पास रेफरेंस मौजूद है कि डेटा कहाँ से डाउनलोड करना है. आई एम रोमिंग टू मच हियर. तो ये हम यहाँ पे डाटा को यहाँ पे स्टोर करा लिया. लेट मी रन दिस. आई हैव रन दिस फर्स्ट, नहीं तो वो आगे वाला रन नहीं होगा, पहले का रन हुआ है. लेट मी रन दिस अगेन. सो यहाँ पे हमने बता दिया कि भाई यहाँ का डाटा चाहिए हमको, और हेयर वी आर हैविंग फैशन एमनेस्ट और लोड डाटा, जो कि कहाँ रिटर्न कर रहा होगा, ट्रेन इमेजेस ट्रेनेबल. ऑलराइट, नाउ वन मोर थिंग, जो डाटा हमारे पास होगा वो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में होगा. दिस इज एन एमनेस्ट डाटा. हमने लास्ट टाइम पहले किया हुआ डाटा एमनेस्ट पे काम, वो किया था हैंड डिजिट रिकॉग्निशन, जो कि हमने रैंडम फॉरेस्ट में किया था आई गेस. सो या दिस इज द सेम थिंग. हमारे डाटा भी फिलहाल एरे के अंदर है, हम अभी इमेज प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, हमारे पास सब कुछ भी प्रोसेस्ड हुआ हुआ है. वी गोना सी इमेज प्रोसेसिंग इन अ कमिंग वर्कशॉप, बट दैट वाज जस्ट यू कैन से हेलो वर्ल्ड. हमारे पास 8 मेगापिक्सेल्स की इमेजेस थी and we were just having 10 images, no sorry, 2000 images as far I know at max, and here we are having 70,000 images. ठीक है, 10,000 images तो उसने भाई evaluation के लिए अलग कर दिया. For what machine learning itself cannot be able to solve this mystery so accurately in that terms, so that is why we are using neural networks here. देखा, पैरामीटर एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है, the size of our data. द वेट ऑफ अ डेटा. वेट क्या है यहाँ पे बेसिकली, अगर देखा जाए, मैं किस वेट को यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा हूँ, दैट वेट इज 28 by 28 पिक्सल्स. दिस इज नॉट 8 by 8 पिक्सल्स. ऑल राइट, सो हेयर वी आर. यहाँ पे पूरी डिटेल्स लिखी हुई है, यू कैन रीड दिस. वी आर लोडिंग द डेटा सेट, रिटर्न्स 4 numpy arrays. 4 numpy arrays आएंगे, ट्रेन इमेजेस में आएंगे, ट्रेन लेबल्स में आएंगे, टेस्ट इमेजेस में आएंगे, टेस्ट लेबल्स में आएंगे. The training images and train labels arrays are the training set data the model used to run. The model is tested against the test set, the test images and test label arrays. Okay. And these images are 28 by 28 numpy arrays with pixel values ranging from 0 to 255. The labels are an array of integers running from 0 to 9. Okay. अब क्या कह रहा है भाई यहाँ पे, उसने बोला कि भैया हमारे पास लेबल इस तरीके से हैं 0 1 2 3 4 5 लेके 9 तक. अब हमें पता कैसे चलेगा भाई 0 कौन सा है, 1 कौन सा है? तो यहाँ पे उसने बता रखा है
कि 0 पे टी शर्ट्स हैं, 1 पे ट्राउजर हैं, 2 पे पुलोवर हैं, 3 पे ड्रेस हैं, 4 पे कोट है, इससे उसने सब बता दिया हमको। ऑलराइट, अब ये सब बताने के बाद उसने हमें ये भी बताया कि भाई हमारे पास जो पिक्सल्स की वैल्यूज हैं वो रेंज हैं 0 से 255 के दरमियान। ठीक हो गया। अच्छा, 0 से 255 के दरमियान अगर रेंजिंग है तो इसको मैं इस तरह ले लूं कि हमारे पास वैल्यूज की रेंज तो इक्वल है, सबकी इतनी इसके बराबर होगा, लेकिन हमारी वैल्यूज बहुत ज़्यादा होंगी। सो वी में नॉर्मलाइज दीज वैल्यूज, हमें कोई और प्री प्रोसेसिंग करने की नीड ना पड़े, बट we may need to normalize these values, and we'll see that in our coming cells. So here each image is mapped to a single label since the class names are not included with the data set. So store them here to use later when plotting the images. अब देखें हमारे पास क्योंकि प्री प्रोसेस डाटा था ना, okay, many people said that we are available, so all right, we gonna have a workshop that day. ओके, मुझे ये भी बता सकते हो कि वर्कशॉप अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो तो पहले कर लें, थोड़ा सा मगरिब से पहले कर लें, बिकॉज मैनी पीपल आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो मुझे बता दीजिएगा पहले से ना, मैं एक फीडबैक फॉर्म डाल दूंगा। थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। और अगर 24 अगस्त का लेक्चर अपलोड कब होगा? नहीं हुआ अपलोड, दैट्स वियर्ड। 24 लेक्चर हो चुका है अपलोड, अगर नहीं हुआ तो आई विल सी दैट एंड आई विल आस्क माय पीपल व्हाई यू हैवंट अपलोडेड येट। थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, हो जाएगा आज, डोंट टेक टेंशन। क्लास नेम्स के हमने यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया, टी शर्ट, ट्राउजर, पुलोवर, ड्रेस कोड, सैंडल, शर्ट एंड व्हाटसोएवर। हमें यहाँ पे कर लिए क्यों किया है? हमारे पास डाटा ऑलरेडी प्री प्रोसेस है, हम डाटा उठाकर डायरेक्टली मशीन लर्निंग मॉडल में या न्यूरल नेटवर्क्स में ट्रेन करा सकते हैं। बट अगर हमें पता ही नहीं होगा 0 क्या है 1 क्या है, तो हमें कैसे मालूम होगा कि जब हम उसको प्लॉटिंग करेंगे, जब हम उस इमेज को विजुलाइज करेंगे अपनी, तो उसको हम नेम दें, तो नेम देखने के बाद हम इमेज से कंपेयर तो कर सकें कि हाँ यहाँ पे स्नीकर है और ऊपर स्नीकर लिखा रहा, तो मतलब उसने सही आइडेंटिफाई किया है। यहाँ जैकेट है और ऊपर जैकेट लिखा रहा, तो इट मीन सही आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पे एंकल बूट्स हैं और ऊपर से टी शर्ट लिखा हुआ है, सो इट मीन्स इट हैज डन रॉन्ग। तो यहाँ पे ये देखने के लिए, ये करने के लिए हमने पहले से ही एक क्लास ने उसकी लिस्ट बना दी विद सेम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर। All right, so now it's the time of exploring the dataset. So let's explore the format of the dataset before training the model. The following shows there are 60,000 images in the training set, with each image is represented by 28 pixels. So let me explain you this further a lot. वैसे आप लोग अब बहुत जीनियस हो गए हैं माशाल्लाह, आप you can do many things by your own, but I'm still maintaining that easy level क्योंकि डिफिकल्टी लेवल पे आप लोगों ने वैसे ही भाग जाना है, so that time तब तक आप सीख रहे हैं। ट्रेन इमेजेस डॉट शेप, यहाँ पे हमें ट्रेन इमेजेस डॉट शेप किया, तो यहाँ पे हमारे पास पहले जो 60,000 आ रहा है, इट इज टेलिंग अस दैट इन दिस ट्रेन इमेजेस के अंदर जो हमारे पास क्या कह रहे हैं, एक एरे है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। उसने बोला भाई हमारे अंदर पास उसके 60,000 एलिमेंट्स हैं, और उस 60,000 के अंदर हमारे पास 2 डायमेंशन और आ गई हैं, हाइट और विड्थ की, ठीक है ना, जो कि 28/28, ठीक है ना, एक इमेज की पिक्सल 28/28 था। तो मतलब हमारे पास 28/28 एक इमेज की अलग शेप और 60,000 इमेजेस हैं इसके अंदर, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग दिस डायमेंशंस ऑफ ट्रेन इमेजेस। हमें ये मालूम होगा हमारे पास इतने लेबल्स हैं और हमारी इमेज की शेप ये है। देन अगर आपको मालूम करना हो कि कितनी अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कभी जिंदगी में देखना हो कि भूल जाओ कि कितने हमारे पास वो है ट्रेन इमेजेस हैं, तो आप सिंपल लेंथ करके भी ट्रेन इमेजेस लिख देना, आपको लेंथ बता देगा, जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है कि लाइकवाइज देयर आर 60,000 लेवल्स इन द ट्रेनिंग सेट। लेंथ क्या है ये, बेसिकली हम क्रॉस चेक कर रहे हैं इधर, कहीं ऐसे तो नहीं कि भाई 60,000 इमेजेस हो लेकिन लेवल्स हमारे पास कम हो, मिसिंग वैल्यू ना हो। तो हमने देख लिया जितनी इमेजेस थी उतनी हमारे पास लेवल्स भी हैं। So again we're gonna move further. Now here we are having each label is an integer between 0 to 9. जैसा कि मैंने आप लोगों को भी ऊपर बताया था कि हमारे पास तमाम की तमाम लेबल 0 से 9 के दरमियान लिस्टेड है। हमें इसमें लिस्टेड स्ट्रिंग में लिस्टेड नहीं है, हमें लेकर पता है कि कौन सा लेबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल राइट, हमें क्या, हमें हमारा काम पहले से आसान, हमें प्री प्रोसेस डाटा सेट मिल चुका है थैंक्स टू गूगल एंड MIT which have done this. So all right, so here we have mentioned train labels, so it's gonna print the entire train labels
और उसने अपने हिसाब से पूरा ट्रेन लेबल प्रिंट कर दिया 60,000 लेबल के साथ। लेकिन जुपिटर या कोलैब ने कहा भाई बस करो, 3 यहाँ के ले लो, 3 आखिर के ले लो, बता दो कि एक एरे है, उसकी डेटा टाइप ये है। यहाँ पे एक एरे प्रिंट हो गया, यहाँ बीच की वैल्यू मिसिंग दिखाएंगे, ऑब्वियसली बात है 10,500 वैल्यूज प्रिंट कर देंगे तो हमें एकदम तो नीचे स्क्रॉल करने में लग जाएगा। We have done this for train. Now we're gonna done the same thing for test images. हमारा टेस्ट इमेज डॉट शेप किया 1000, हमारे पास 10,000 इमेजेस हैं फॉर टेस्टिंग। पहले ही से ही उन्होंने टेस्टिंग सेट बना रखा है, पहले से ही उन्होंने ट्रेनिंग सेट बना रखा है, इतना आसान कर दिया हमारे काम को। 28 हमारे पास 28 बाई की इमेज हमारे पास, और अगर आप लेंथ मालूम करोगे तब भी आपके पास टेस्ट लेबल। आप चाहो तो एक यहाँ पे जैसे ट्रेन लेबल्स लिखा हुआ है, आप टेस्ट लेबल्स को भी प्रिंट करके देख सकते हो। लेट मी नो इफ दैट्स एंटायरली नेसेसरी, अगर आपको खुद सलाह हो। $60,000 तो टोटल है ना, तो टेस्ट इमेजेस में क्या आएगा? 60,000 टोटल इमेजेस ट्रेन सेट में है। या गुड गुड पॉइंटिंग, अगर मैं कभी बताने में भूल गया हूँ, सो लेट मी टेल यू अगेन। वी आर हैविंग, मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था दैट वी आर हैविंग 70,000 ग्रे स्केल इमेजेस इन 10 कैटेगरीज। व्हाट वी हैव इन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन जैसी क्वेश्चंस, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दीज प्रॉब्लम्स आर यूज्ड टू सॉल्व बाइनरी क्लासिफिकेशन which are in which we are having 0 and 1, or in which we are having only 2 classes. So now we are having 10 classes. This is also a classification problem. And how many samples we are having? 70,000 sampling in the format of grayscale images. मतलब काम आसान। उन 70,000 इमेजेस के अंदर हमारे पास 60,000 इमेजेस, अगर हम उसका रेशियो निकालना चाहें ना यहाँ पे, तो निकाल सकते हैं कि 70,000 नहीं सॉरी 60,000 को डिवाइड कर दें आप 700 से, तो हमें मालूम हो जाएगा कि किसने कितना परसेंट जो है। तो वही 85% जो है ना ट्रेनिंग सेट है हमारे पास, और 15% जो होगा ऑलमोस्ट हमारे पास वो है टेस्ट सेट है। ओके गुड है। तो इन्होंने गूगल वालों ने इतने ही हमारे पास रखा हुआ है, 60,000 हमारे पास हुआ है, और 10,000 हमारे पास टेस्ट सेट है। तो टोटल इमेजेस का आप लोगों को यहाँ पे आइडिया हो जाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और था, हाउ 60,000 इट शोज 10 लेवल्स। देखो ये एक किस्सा मैं समझाऊं, लेट मी शो यू। वी आर हैविंग 3 प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं 3 चीजें दिखा देता हूँ, 2 ब्लैक हैं और एक वाइट है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 चीजें हैं, लेकिन मैंने कहा मैं 2 लेबल दूंगा। लेवल क्या है मेरा? एक 0 है, एक लेवल मेरा 1 है। लेवल 1 बता रहा है कि वो पावर बैंक है, लेवल 0 बता रहा है वो मोबाइल है। अब जब क्लासीफाई करूंगा तो वो 2 मोबाइलों को साइड पे कर देगा और पावर बैंक को साइड पे कर देगा, विच मीन्स that this was class 1 and this was class 0. So classes can be low. Don't confuse with the labels. Labels are basically the classes. Okay. अब यहाँ पे ना बेसिकली हमारे पास यूनिक वैल्यूज आ रही हैं। अगर आप ये मालूम पूछना चाह रहे हो कि हमारे पास नंबर ऑफ लेबल्स कितने हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ लेबल्स यहाँ पे 60,000 ही हैं। 60,000 इमेजेस हैं और 60,000 हमारे पास लेबल्स ही हैं, लेकिन इनकी यूनिक वैल्यूज हमारे पास सब 10 है। ओके, गोइंग फर्दर, we performed the same thing for test images as well. Let me see कि हमने लास्ट रन कहाँ किया था, मैं कोड रन करना भूल गया हूँ। ओके, let me run this. ओके, तो भाई हम लोग टेस्ट सेट वगैरह हमने सारा देख लिया, हमने ट्रेनिंग सेट वगैरह सारा हमने देख लिया। So I'm happy today right now because we are having full amount of attendees today. Just 10-15 students नहीं आए, बाकी सभी आए हुए। Okay, pre-processing the data. The data must be pre-processed before the training the network. If you inspect the first image in the training set, you will see that pixel values fall in the range of 0 to 255. ये क्या कह रहा है, जरा उसको उर्दू में देखेंगे। Okay, alright, we are just plotting this figure. Okay, हम यहाँ plot dot figure किया, ये क्या करता है? This just draws a template for a figure. पुराने concepts recall होते रहेंगे बार बार, भूलना किसी चीज को नहीं है। Plot dot figure हो रहा है, यहाँ पे recall हो गया हमारे पास, क्या figure recall हो गई है। अब एक template है जिसपे हमारे पास figure आ सकती है, लेकिन हमारे पास plot नहीं हो रही है वो। Plot dot figure कर दिया, then we have mentioned plot dot imshow. What is imshow doing? This grabs the numerical data in numerical array, or you can say number array, and visualize into a image format.
अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ में दे दिया ट्रेन इमेजेस 0, मतलब जो हमारी बिल्कुल पहली इमेज होगी ना वो हमने यहाँ पास कर दिया है। अच्छा, चली गई भाई, पास हो गई, चली गई। अब उसके अंदर एक 28 बाई 28 पिक्सल्स का एक एरे होगा, ठीक है। फिर हमने डाल दिया प्लॉट कलर बार। ये प्लॉट कलर बार से क्या होगा, हमारे पास एक कलर बार आ गया विच इज डिफाइनिंग डिफरेंट रेंजेस। आपने मूवीज में देखा होगा, आप लोगों ने डिफरेंट सेल्फ ड्राइविंग कार की एप्लीकेशंस में शायद देखा हो that the data which is used to identify people and different things obstacle around the car, और मूवीज में अगर आप देखो that is not the real video। उस पे दिखाए होंगे कुछ एक्चुअल रोबोटिक एनिमेशंस आ रही हैं, well that's another type of fantasies। हमारे यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा होता है सिंपल सा, आपकी मर्जी, आपके पास अच्छा सिस्टम है, आप रोबोटिक फैंटेसीज लगा दो डिटेक्शन के ऊपर, तो आपके पास उसी टाइप की बिल्कुल एंटीक पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। देन आपने देखा होगा कि सेल्फ ड्राइविंग टेक्निक्स के अंदर या अल्ट्रा सोनिक सेंसर की जो डाटा होता है वहाँ पे आप डायरेक्ट रियल डाटा नहीं थ्रो कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल डाटा जा रहा होता है। और न्यूमेरिकल डाटा को आपको विजुलाइज करवाने के लिए उसको जरूरत नहीं है विजुलाइजेशन की, आपको विजुलाइज करवाने के लिए वो आपको दिखा रहा होता है इसी पर्पल ग्रीन ब्लू रेड फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। जो जिससे हमें पता चल रहा है एक कि जूता नहीं है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि भाई शेड जूते जैसी है। ये फीचर्स इसके लिए बहुत वैल्यूएबल है, भले हमारे लिए ना हो। ओके सो हेयर वी आर मेंशनिंग प्लॉट डॉट ग्रेड फॉल, ताकि यहाँ पे ग्रेड्स डेवलप ना हो, और हमने यहाँ पे इमेज को शो कर दिया। सो नाउ हेयर वी आर हैविंग अ इमेज। इमेज क्या है हमारी, जूता है, स्नीकर है, जो भी होगा हम देख लेंगे क्या है। तो यहाँ पे हमने इसको एक फर्स्ट इमेज को 60,000 इमेजेस में से फर्स्ट इमेज को हमने यहाँ पे विजुलाइज कर दिया बाय यूजिंग मैटप्लॉटलिब। एनी क्वेश्चंस हियर गाइस? Okay, no questions. So, all right, moving further. Now we are scaling these values to a range of 0 to 1 before feeding them to the neural network model. To do so, divide the values by 255. It's important that the training set and testing set be processed in the same way. All right, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि scale these values to the range of 0 to 1 before feeding them to the neural network model। ये नहीं लिखा हुआ कि क्यों कर रहे हैं हम, सिंपल सी बात है, ताकि कैलकुलेशन हमारी सिंपल हो जाए, ठीक है। देखो एक एक नंबर जो होता है ना, आपकी कितनी मेमोरी को ऑक्युपाई कर रहा होता है आपको मालूम नहीं होता, और खास तौर पे जब आपके पास 60,000 इनपुट्स जा रहे होंगे, और उसके बाद फिर आपकी जो पैरामीटर, इतना सारा डाटा है, फिर उसके बाद आपके पैरामीटर ट्यूनिंग कितनी कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, आपके ट्रेनेबल पैरामीटर तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आपके पास जब 255 की रेंज में डाटा जा रहा होगा ना, सो इट गोइंग टू टेक 250 टाइम्स लॉन्गर टाइम। अगर हमारा डेटा 0 और 1 की रेंज में होगा, हमने इतना डिवाइड कर दिया होगा ना, तो वो 250 टाइम्स लेस टाइम लेगा। इसको अगर लेमन टर्म में समझाऊं तो वो इस तरह समझा सकता हूँ कि अगर कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑनलाइन ना नोटपैड खोल ही लेते हैं, या डॉक्स खोल लेते हैं, डॉक्स। ओके, हियर वी आर हैविंग डॉक्स। तो बताता हूँ कि कितना उसका फर्क है रियल रियल वर्ल्ड के अंदर। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी 255 की रेंज दे रहा है। नाउ लेट्स सी कि अगर हमारे पास 255, हमने एक बना लिया कि भाई एक 255 इमेजेस को ट्रेन करने के अंदर लग रहा है हमको, मतलब 255 इमेजेस नहीं, 255 की रेंज को ट्रेन करने में हमें लग रहा है फॉर एग्जांपल 10 डेज, ठीक है। अगर हम इसी यहाँ पे इमेजेस लिखा हुआ है मैंने, 250 रेंज है, तो 0 to 255 है। अगर हमारे पास यही वैल्यू 0 to 1 हो जाए, हमारे पास यही वैल्यू 0 to 1 हो जाए, तो क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है? सिंपल मैथमेटिक्स है कि आप उसी कंप्यूटेशन पावर पे 10 डेज को डिवाइड बाय क्या कर दो, 255 कर दो। देखा कितना सिंपल था। अब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो ये बेसिकली बनेंगे 240 आवर्स जो है ना, डिवाइड बाय 255, और ये बन रहा है हमारा 240 आवर्स, ठीक है। अब अगर हम देखें उसको वैल्यूज को सॉल्व करें तो कितना ट्रेनिंग टाइम बन रहा है हमारा, हम उसको भी चेक कर लेंगे। तो ओके, 0.96 and 0.96. Don't try to involve in my maths right now. You may be confused. Okay. तो भाई
टोटल जो ट्रेनेबल टाइम 57.6 आ रहा है। इसको टोटल टाइम पता है कितना लगेगा, कहाँ उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको लग रहा होगा 57.6 मिनट्स। टाइम देखा आपने कितना कम हो गया, कि कितना मशीन लर्निंग, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास ना कई दफा आ चुके हैं दैट हाउ इट विल गेट इजी फॉर दैट, कि भाई कंप्यूटर की थोड़ी मुश्किल थोड़ी होती है कि 25 को देर देर में सॉल्व करो या एक देर में सॉल्व करो। वन नंबर, इवन वन नंबर मैटर्स, एक नंबर बहुत मैटर करता है। आपको जब पैरामीटर इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं ना, आपके उतने ही ज्यादा सीपीयू की कंजप्शन हो रही होती है, आपके उतनी ही ज्यादा जीपीयू की कंजप्शन होती है। सो बाय हियर वी आर नॉर्मलाइजिंग अ डेटा, नॉर्मलाइजिंग अ रेंज। नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ी हुई ऑलरेडी, उसको मुझे आप यूट्यूब पे मजीद देखिएगा दैट व्हाट जायंट रोल इट प्लेस। तो भाई देखो ये फर्क है इसका, तभी हम शुरू से 0 के दरम्यान वैल्यूज को कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं। एंड इट विल नेवर लूज योर क्वालिटी। क्या होगा कि जो नंबर यहाँ पे 24 था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे कर लेते हैं, वो यहाँ पे ना 013 हो गया, बस ये फर्क हो गया। तो इससे क्या हुआ, हमारी वैल्यूज कम हो गई, और जब हमारी वैल्यूज ही कम हो गई तो हमारा ट्रेनिंग टाइम बहुत कम हो गया। अब उसमें एक चीज का प्रॉब्लम होता है, बस जब आप उसको कम कर रहे होते हो ना वैल्यूज को, तो आपको प्रिडिक्शन के वक्त भी, और मतलब प्रिडिक्शन नहीं कहें तो स्पेशली टेस्ट सेट के वक्त जो है ना, आपको वैल्यूज वही अप्लाई करना पड़ता है टेस्ट सेट के ऊपर भी जो आपने उस पर कर रखा हो, ताकि इवेल्यूशन में वो कंफ्यूज ना हो जाए, भाई टेस्ट ट्रेनिंग मुझे 0-1 पे करिए, टेस्टिंग के अंदर 255 का डाटा आ रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है, आपने सिंपली डेटा को क्या करना है, डिवाइड बाय 25 255.0 कर देना है। तो उसके जितने भी आंसर्स होंगे वो रेंज में आ जाएंगे। इफ यू वांट टू सी द आंसर्स तो देख सकते हो यहाँ पे ट्रेन इमेजेस। राइट, मैं पहले ऊपर वाला कोड रन कर लूँ, मैंने ऊपर से कोड रन नहीं करा अगेन, आई जस्ट फॉरगॉट टू डू दैट। ओके, टेकिंग टाइम। तो अब यहाँ पे अगर हम अपनी कुछ वैल्यूज देखेंगे 2-3, अब ये आपको यहाँ पे ना 0.0 इतनी इतनी ही कोई कम वैल्यूज है कि उसने उसको इग्नोर कर रखा है, बट दीज आर इन फ्लोट। सो डोंट वरी, हमारी वैल्यूज हैं अभी भी, ठीक है ना, ये प्योर, दीज आर नॉट इन प्योर जीरो, दे आर, वी आर नॉट गेटिंग जीरो हियर। तो हमने अपनी वैल्यूज को इतना डिवाइड कर दिया ऑलरेडी। ओके, सो यहाँ पे हम थोड़ा प्लॉटिंग करेंगे। अब फिर से प्लॉटिंग किस तरीके से करेंगे, वी गोना डू प्लॉट डॉट फिगर। फिगर साइज हमने दे दिया, 10x10 साइज होगा हमारी इमेज का, फॉर आई इन रेंज 25। ये अब ना यहाँ पे एल्गोरिथम एक पावर चल रही है जो मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अच्छा, ये अयान ने पूछा कि वाई 25 ही क्यों, बिकॉज यहाँ पे बताया है कि उसने कि भाई यहाँ पे हमने यहाँ विजुलाइज किया था, हमारे पास क्या स्केल आ रहा था, ये आप देखो तो 255 स्केल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पहले भी बता रखा है कि यहाँ पे रेंज जो होगी 255 तक पे आएगी। जब आप डेटा सेट बनाते हो ना, आपको तब भी पता होती है, तो डेटा सेट बनाने वाले बता देते हैं कि इसकी क्या रेंज है। सो टू डू सो डिवाइड द वैल्यूज बाय 255, तो हमने इसको 255 डिवाइड कर दिया, सिंपल इज दैट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे अब करेंगे प्लॉट करेंगे कुछ इमेजेस को, और क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, चलो देखते हैं थोड़ा सा। वी आर यूजिंग फोर लूप हियर। यहाँ पे हमने एक टेम्पलेट डेवलप कर दिया, प्लॉट डॉट फिगर, फिगर्स आर 10x10, देन वी हैव मेंशन फॉर आई इन रेंज 25। ये 25 तक चलेगा, 0 से लेके 24, मतलब 25 टाइम चलेगा। प्लॉट डॉट एक्सटिक्स, यहाँ पे हमने एक ये एम्प्टी लिस्ट डाल दिया, ओके। प्लॉट डॉट वाई टिक्स, हमने यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट डाल दिया, ओके। किसी को जरूरत तो नहीं थी या जरूरत थी, मेरा नहीं ख्याल, देखते हैं क्या क्या काम हो रहा है यहाँ पे। तो प्लॉट डॉट ग्रेड फॉल्स, अच्छा हमें समझ में आ गया इसका काम क्या हो रहा है, एक्स टिक और वाई टिक का। यहाँ पे इन्होंने एम्प्टी लिस्ट डाल दी है, लेकिन अब इसके जो भी लेबल्स होंगे ना, वो हमारे पास यहाँ मेंशन हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है वो भी हम देखते हैं। वेट, प्लॉट डॉट ग्रेड यहाँ हमने फॉल्स कर दिया, हमारे पास ग्रेड रिमूव हो गई है। देन वी हैव मेंशन प्लॉट डॉट इमेज शो ट्रेन इमेजेस सी मैप इज इक्वल टू प्लॉट डॉट हटो सी एम डॉट बाइनरी। बार बार जो खुल जाता है ना, मुझे बहुत इससे नफरत होती है। ऑलराइट, तो हमारे पास 25 इमेजेस प्रिंट होनी है, कैसे, क्योंकि हमारा लूप सब 25 तक चलेगा, हम लोग 60,000 इमेजेस प्रिंट अभी नहीं कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो 25,000 इमेजेस हम देख लेते हैं थोड़ा ज़रा, तो चलेगा। अब हमारी वैल्यू जो यहाँ पे है ना बेसिकली, वो
आई की वैल्यू चेंज हो रही है। अब प्लॉट डॉट सब प्लॉट क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे ना पोजीशन चेंज कर रहा है सबकी। जब जब वो प्लॉट इमेज करेगा तब तब हमारी पोजीशन भी चेंज हो चुकी होगी। हर पिक्चर एक नए प्लॉट के बाद बनी बनी हुई आएगी। और ये हमने एक्स डाल दिया, हमारे पास ये एक्स की जगह पे लेबल्स आ गए हैं, दिए हमने लेबल्स ही मेंशन कर दिए, प्लॉट डॉट एक्स लेबल, क्लास नेम्स और यहाँ पे ट्रेन लेबल्स दे दिए। ठीक है, अभी क्लास नेम कहाँ से आया हमारे पास, हमने जो ऊपर क्लास नेम्स बनाई थी सबसे ऊपर टॉप पे, देखना हो तो गिटहब पे जाकर देख लो, या फिर मैं दिखा देता हूँ चलो। ये ही क्लास नेम, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्लास नेम्स। तो क्लास नेम के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, जो हमारे पास लेबल आएगा, लेबल कहाँ से आएगा, हमने डाल दिया ट्रेन लेबल्स, और उसमें नंबर चल रहा होगा जो भी हमारे पास, जिस भी हम करंट पिक्चर के अंदर हम होंगे। यहाँ पे हमें सी मैप पे प्लॉट डॉट सी एम डॉट जो बाइनरी लिखा हुआ है, यहाँ पे बेसिकली ग्रे स्केल कलर स्केल आ रहा होगा इसके पास, और उस हिसाब से उसको वो कलरिंग कर रहा है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और यहाँ पे हमारे पास वही फिर नुमारी कलर आ गया, हमने यहाँ पे जब विजुलाइज किया, so now we are getting some sort of images with their label as well, like ankle boot, t-shirt, top or dress, pullover, sneaker, sandal. There are so many things there. Bag, coat, trouser, dress, shirt. कुछ नहीं छोड़ा मैंने. So we are having so many things here. तो हमने यहाँ पे okay. Someone has asked that, sir, these ML program videos will remain on YouTube or not? Because I want to revise few things after my exam, so kindly reply. Yes, they will be always available on our YouTube. क्योंकि मशीन लर्निंग के बाद हम लोग डायरेक्ट डीप लर्निंग में चले जाएंगे. वी आर नॉट कमिंग बैक टू मशीन लर्निंग दैन. सो बी स्टिक टू अस, ताकि अगर कहीं आपने प्रोग्राम मिस कर दिया कोई एक, सो यू वॉन्ट कैच अप विद अस लेटर. वही हमने यहाँ क्वेश्चन तो ड्रॉप कर दिया. नाउ आवर मेन टास्क व्हिच इज बिल्डिंग द मॉडल, जो कि बिल्कुल हम लोग टाइम से 4 मिनट्स लेट बना रहे हैं, बट डोंट वरी. So here we are building the model. Building the neural network requires configuring the layers of the model. हमें सब मालूम है भाई. Here are the layers. The basic building block of a neural network is the layer. Layers that extract representations from the data, feed them. Hopefully these representations are meaningful for them problem at hand. बहुत सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, जो सारी मैं आपको बता चुका हूँ. पढ़ते रहिए मेरे से साथ साथ. असल चीज हमारी है न्यूरल नेटवर्क डेवलप करना. अब न्यूरल नेटवर्क डेवलप कैसे करेंगे, हम लोग सिक्वेंशियल लेयर डेवलप कर रहे हैं बाय यूजिंग सिक्वेंशियल एपीआई, बाय यूजिंग सिक्वेंशियल एपीआई. ये जो सिक्वेंशियल है ना, ये बेसिकली एपीआई होती है क्लास की, जो कि टेंसरफ्लो के डेटा में से फेच होकर आपको एक न्यूरल नेटवर्क डेवलप करके दे रही है. तो अभी आप बोलोगे शायद ये क्लाउड बेस्ड है. नहीं, क्लाउड बेस्ड नहीं है, ये लोकल होस्ट पे काम चलता है. ओके, यहाँ पे tf.keras.layers.flatten, यहाँ फ्लैटन हो रही है. अच्छा, बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे. एक लेयर हमारे पास ये, जो कि हमारी इनपुट लेयर है. फिर हमारे पास tf.keras.layers dense 128 एक्टिवेशन रेलू. ओके, tf.keras.layers dense 10. by what means they have put these 128 10, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं उसको. आई होप यहाँ लिखा होगा. वी गोना सी. ये तो आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 10 क्यों लिखा है. अगर ये नहीं पता तो अब तक आपको न्यूरल नेटवर्क अच्छे नहीं हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. 10 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास 10 क्लासेस हैं. 28/28 क्यों लिखा हुआ हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इनपुट जो 28/28 है. अब 128 क्यों लिखा है यहाँ पे, वो हम देखते हैं. तो भाई बज़ाहिर हमारे पास 3 इनपुट लेयर है. ठीक है, एक इनपुट लेयर है, और उस एक इनपुट लेयर के अंदर इनपुट जो 28/28 का है. as far I can see, there are no multiple neurons here in this. This is, we are just mentioning toward, तो मतलब एक ही बैच से, एक ही न्यूरॉन से जा रहे होंगे सारा डेटा, आई गेस. and then we are having 128 nodes here, and then activation function ReLU, और यहाँ पे हमारे पास 10 आउटपुट है. now let's see what we are having here to see in the theoretical trend format here. The first layer in the network, tf.keras.layers.flatten, transform the format of the images from a 2-dimensional array to a 1-dimensional array. अब यहाँ पे ना मजीद प्री प्रोसेसिंग हो रही है. ये बिल्कुल अच्छी टेक्निक लगती है मुझे न्यूरल नेटवर्क्स की, कि हम अपनी जो मेजर प्री प्रोसेसिंग टेक्निक है जो हर चीज़ के ऊपर अप्लाई होनी है, आप उसको न्यूरल नेटवर्क के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो. अब ये क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास डाटा, हम जैसे याद है हम लोग टेक्सचुअल डेटा को जब रीड शेप करते थे,
टू रीशेप अ डाटा ताकि वो हमारे मशीन लर्निंग के अंदर वन डायमेंशन में होकर जाए। ठीक है, वैसे अब हम इमेजेस के लिए डॉट फ्लैटन यूज कर रहे हैं, हमारे इमेजेस को फ्लैट कर रहा है। टू डायमेंशंस थी, विड्थ बाय हाइट, नाउ वी आर हैविंग वन डायमेंशन। वन डायमेंशन उसी की अंदर हमारे पास विड्थ और हाइट का डाटा मौजूद होगा। अब कैसे होगा ये तो खैर बहुत लंबी साइंस चली गई, बट वी आर जस्ट रिड्यूसिंग द डायमेंशन। Now, this transforms the format of the images from a two-dimensional array of 28 by 28 pixels to a one-dimensional array 28 by 28 is equal to 784 pixels. हमारे पास यहाँ पे 784 पिक्सल्स जो है का एक इमेज था, मतलब एक इमेज के पास इतनी सारी वैल्यूज मौजूद थी। Think of this layer as taking rows of pixels in the image and lining them up. This layer has no parameters to learn if it only reformats the data. After the pixels are flattened, the network consists of a sequence of two keras.dense layers. These are densely connected or fully connected neural layers. The first dense layer has 128 neurons per neurons. The second and last layer returns the logic return with OK. अब यहाँ पे तो भाई हमारे पास भाई इन्होंने 128 न्यूरॉन यूज किए हुए, यहाँ हमारे पास एक ही न्यूरॉन है। किस हिसाब से किया ये तो उन्होंने मेंशन नहीं करा, बट इफ वी सी बाय डिवाइडिंग, मेरे ख्याल से 784 का कोई डिवीजन है जो उन्होंने बेहतर समझाया। लेट मी सी इट 128। ऑल राइट, तो पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने 128 दिया, आई डोंट नो। इन्होंने मेंशन करना चाहिए था, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे होता ना तो मैं किस हिसाब से यहाँ पे 128 न्यूरॉन्स डेवलप कर रहा होता। what I will be doing, I'm gonna do one dividing 120, sorry, I did 784. I'm gonna divide that with you can say 6. अब मेरे पास यहाँ पे 130 आ रहा था, 130 न्यूरॉन्स ले लेता, सो करीब करीब ये अच्छा। तो या 5 कर लेता, क्या आ रहा है 156, बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स होगा ये तो खैर ये सही है, उन्होंने करीब करीब ही लिया हुआ है। अब ये इसके एक तरीका और भी होता है टू कैलकुलेट द न्यूरॉन्स, लेकिन अभी हम इजी बेस पे ना, तो इजी बेस के हिसाब से मैं देखा हूँ, इनको ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए ताकि आप लोगों को मालूम होता। ओके, सो आफ्टर द पिक्सेल्स आर फ्लैटेंड द न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू। ओके, ये हमने पढ़ लिया था। तो ये सारा वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि यहाँ पे हमारे पास इमेज आ रही 28 बाई 28 पिक्सल्स की, वो क्या हो रही है, फ्लैट हो रही है, वन डायमेंशन बेस बन रही है। तो उसके बाद जो होगा ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल डाटा आगे जा रहा होगा, वो किस में जा रहा है, 128 नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 128 अब 128 नोड में जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन भी अप्लाई हो रहा है। कौन सा, लीनियर रेक्टिफायर यूनिट फंक्शन, रेलू कह दिया ना सिंपल। वो हर 120 हर नोड पे वो अप्लाई हो रहा है, या हर न्यूरॉन पे वो अप्लाई हो रहा है रेलू का एक्टिवेशन फंक्शन। फिर वहां से 128 न्यूरॉन से डेटा सारा का सारा आ रहा है, और वो कहाँ पे आके मर्ज हो रहा है, आउटपुट लेयर जो हमारी, इसमें 10 न्यूरॉन्स है। ठीक है, क्यों 10 न्यूरॉन्स रखें, बिकॉज वी आर हैविंग 10 क्लासेस, सो इट गोना परफॉर्म लाइक कि हमारी एक डिफरेंट न्यूरॉन एक डिफरेंट आउटपुट जनरेट कर रहा हो। यूजुअली ये गुड प्रैक्टिस होती है, आप कुछ नहीं आ रहा होता ना तब यही करते हैं कि आप 10 न्यूरॉन रख देते हो, और मतलब जितने आपके पास आउटपुट आ रहे हैं उतना आप आउटपुट लेयर के अंदर न्यूरॉन रख देते हो, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। लेकिन इसके और भी कुछ डिफरेंट एल्गोरिथम है जो आगे जाके हम लोग देखते होंगे टू सी हाउ वी गोना परफॉर्म दिस। ऑलराइट, ओके, compiling the roast. I got a just offer from my house. What do you want to eat? Club sandwich or burger? Okay, I want to eat club sandwich. Yeah. All right. So compiling the model. Before the model is ready for training, it needs a few more settings. These are added during the model's compile step. अच्छा, ये हमने पहले भी करा हुआ है। क्या कर रहे होते हैं हम, इसके अंदर ऑप्टिमाइजर बता रहे होते हैं कि हमारा ऑप्टिमाइजर कौन सा होगा। But now we are having some more things here, जो कि क्रॉस एंट्रोपी है। Today I'm not gonna explain you cross entropy in detail, but in the advanced workshop we are having this section as well. So then we will learn what is cross entropy, or you can learn by yourself on the YouTube as well. Model.compile में हमने 3 पैरामीटर पास किए हैं, optimizer.arm, लॉस है हमारा, और मैट्रिक्स है। अभी तीनों क्या कर रहे हैं, लॉस फंक्शन, this which is how accurate the model is during training. We want to minimize this function to steer the model in the right direction. We already know that, ठीक है ना। लॉस फंक्शन से ही मौजूद पता चलता है हमारा कि हमारा मॉडल अभी कितने लॉस के अंदर है और कितने लॉस के अंदर नहीं है। यहाँ पे ये लोग क्या यूज कर रहे हैं, tf.keras.losses.sparse categorical cross entropy
फ्रॉम लॉजिट्स इक्वल टू, इतना बड़ा नाम है इसका। तो ये बेसिकली कैटेगोरिकल क्लासिफिकेशंस के लिए होता है। ये लॉस फंक्शन ही टेंसरफ्लो का अपना। सो आप टेंसरफ्लो के कितने सारे लॉस फंक्शंस हैं, अगर आप पढ़ पढ़ के थक जाओगे, you can simply go here, TensorFlow loss functions, and documentations पढ़ना सीखें। डॉक्यूमेंटेशन से ही इंजीनियर बनता है इंसान। तो यहाँ पे आप जाकर सारे के सारे लॉसेस पढ़ लीजिएगा कि कौन सा लॉस क्या कर रहा है। ये देख रहे थे सारे पॉइजन, टाइप रिडक्शन, ये और उसके आगे लिखा हुआ है कौन सा क्या कर रहा है। So it will tell you which suits you well while training a data. It's gonna take some time as well to know this well. Now with this optimizer, this is how the model is updated based on the data. It sees its loss function. हमारे पास यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं आरएम ऑप्टिमाइजर। आरएम इज नॉट एन एक्रोनिम। एक्रोनिम मीन्स के किसी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, कोई एब्रिविएशन नहीं है। आरएम इज इटसेल्फ अ नेम। What is RMS? You can simply navigate to internet and learn about Adam Optimizer. You have already learned gradient descent algorithm, which is way too difficult. तो Adam आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आप जाके gentle introduction ले सकते हो Adam पे, और अगर कहेंगे तो YouTube पे भी देख लेंगे। Simply go because I am letting you, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा huge gap होगा। All right, here we are having a very wonderful वीडियो। ये देख लीजिएगा बस, सब छोड़ें। ये मैंने इनसे पढ़ा है। आई हैव आल्सो टेकन सम पेड पर्सनल ट्यूशन फ्रॉम एंड्रयू निक एज वेल, एंड आई लव हिम, एंड्रयू निक। तो मैंने इनसे ही पढ़ा बहुत सारी चीज़ें। कुछ कोर्स भी कर रखे, बट मैंने इनसे जब पर्सनल इंट्यूशन लिया 2 वीक्स की, दैट वाज वंडरफुल। सो यू कैन नेविगेट हियर, यू कैन लर्न फ्रॉम एंड्रयू निक ऑन द इंटरनेट अबाउट व्हाट एडम परफॉर्म। इस तरीके से आप लॉस की डॉक्यूमेंटेशन देख लेंगे, उससे पता चल जाएगा कि वो मैथमेटिकली कैसे परफॉर्म कर रहा है। अभी हम एक एक अगर लॉस फंक्शन को मैथमेटिकली परफॉर्म करेंगे, एक एक एडम को मैथमेटिकली परफॉर्म करेंगे, सो इट गोना टेक अस ईयर। ऑल राइट, सो हेयर वी हैव मेंशन मैट्रिक्स एक्यूरेसी। तो जब हमारा मॉडल कंपाइल हो रहा होगा या जब हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा होगा, तो हमें एक्यूरेसी भी बता रहा होगा। पहले मैंने मॉडल ट्रेन करा था, हमें वो एक्यूरेसी नहीं बताता था, लेकिन अब वो हमें एक्यूरेसी भी बताएगा साथ साथ हर इपॉक पे। पहले हमारे पास सिर्फ लॉस वैल्यूज आ रही थी, हमारे पास एक्यूरेसी वैल्यू भी आएगी ना। ट्रेनिंग द मॉडल, अब हमारा काम आ गया भाई ट्रेनिंग मॉडल को ट्रेन करने का। ये सारा आपको पता है क्या लिखा हुआ है, टेस्ट इमेजेस किसके यूज होते हैं और ट्रेनेबल किसके यूज होता है। अयान हैज गिव मी वेरी गुड सजेशन। सर अगर आप रोज ऐसे ही नोटबुक बना लिया करेंगे तो कोड एंड देन समझने में, थ्योरी समझने में आसानी होगी हमको। ठीक है, आई विल ट्राई टू डू इट। एक्चुअली इट टेक्स सम टाइम, इट टेक्स अ ह्यूज टाइम। तो ऑलराइट, फीड द मॉडल। To start training, call the model.feed method. So it feeds the model to the training data, and then we are performing the same thing. We are having 10 epochs here. All right, आज आप लोगों का एक होमवर्क होगा। वो होमवर्क होगा ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग का कंसेप्ट। यहाँ मैंने लिंक मेंशन कर दिया, वहाँ पे जाकर आपने पढ़ना होगा। ओके, model.fit, यहाँ पे हमारे पास आ गया ट्रेन इमेजेस और ट्रेन लेबल्स। यही होता है ना एक्स और वाई फीचर्स। तो हमारे पास यहाँ पे फीचर्स आ गए हैं और यहाँ पे हमारे पास लेबल्स आ गए हैं, एक्स वाई आ गए, और हमने यहाँ मेंशन कर दिया भाई इतने इपॉक रखना है। न्यूरल नेटवर्क हमारा ऊपर बिल्ड हो चुका है मॉडल। हमने मॉडल को कंपाइलिंग में डाल दिया कि कौन सा ऑप्टिमाइजर फंक्शन यूज करना, कौन सी लॉस वैल्यूएशन के लिए मेथड यूज करना, कौन सा मैट्रिक्स यूज करना है व्हाइल ट्रेनिंग। सो नाउ वी गोना हैव एवरीथिंग एट द सेम टाइम। Since I haven't run this code from the top right here, so I must have to run this code. Let me just do it. It will just take 1 minute. Okay. एक इपॉक हो भी गया। 1875 डाटा एक वक्त में आ रहा है इसके पास। वाओ मैन, इतना सारा डाटा एक साथ बड़ी तेजी से चल रहा है। if someone don't know, so I'm currently on GPU mode. GPU मोड में आपके पास हार्ड ड्राइव कम मिलती है, लेकिन रैम 12 GB का आपको ग्राफिक कार्ड मिलता है NVIDIA टेस्ला का, फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड यू कैन लर्न अबाउट अप टू 8 hours per day. मैं GPU यूज कर रहा हूँ, एंड दैट इज व्हाई इट्स ट्रेनिंग सो फास्ट। अपने कंप्यूटर में मत कीजिएगा, इट गोना गिव यू some bad words right then. Alright, just wait for a second. यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेसी मेजर हो रही है। हमारा टारगेट अभी 0.9 लाने का नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू 0.9999 लाने का नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू ओवरफिट और मॉडल, और ओवरफिट और अंडरफिट के कुछ कमांड्स हैं या कुछ थ्योरीज हैं, तो हम देख लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे 20 क्यों किया है, अभी हम देखते हैं इस बात को भी। जरा 20 हो जाए, फिर हम दोबारा करेंगे इसको विद डिफरेंट वैल्यूज।
9-2 है अभी, 9-10 तक हमारी या 9:50 तक हमारी वर्कशॉप खत्म हो जाएगी। ऑलराइट, सो इट्स ऑल डन। अब आप अगर अगर देखो तो एक्यूरेसी हमारी 8-2 से स्टार्ट हुई, फिर 8-6 पे आ गई, 8-7 पे आ गई, करते करते 9-0 पे आ गई, 9-1 पे आ गई। देन व्हाट जस्ट हैपन, 9-2 से आगे नहीं बढ़ के दे रही, लाइक 9-3, 8-9-6, 6, बहुत स्लो लैंडिंग है। इस स्लो लैंडिंग से पता है क्या इवेल्युएट होता है कि आपका मॉडल अब शायद देयर मे बी चांसेस ऑफ बीइंग ओवरफिटेड, आपका मॉडल ओवरफिट भी हो सकता है। इजी प्रैक्टिस यही होती है, एक आम बंदे को समझाने के लिए भी, हम लोग आम बंदे हैं, ठीक है ना, एक आप लोग भी आम बंदे हो, तो आम बंदे को समझाने के लिए एक इजी प्रैक्टिस ये होती है ओवर फिटिंग से रोकने के लिए, कि जहाँ पर आके लॉस बहुत स्लोली गिरे, या जहाँ पे जाके एक्यूरेसी बहुत स्लोली इंक्रीज हो। फॉर एग्जांपल कहाँ पे जाकर स्लोली, इपॉक्स अगर हम देखें तो 10 इपॉक्स में बस 0.9075 था, तो आई गेस 15 epochs आर मोर देन इनफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको 15 कर देंगे। अभी तो खैर यहाँ पे हमने 10, 100, 15 नहीं करा, हमारे पास तो टाइम नहीं था, नहीं तो हम वो भी कर लेते। 120, 200 वैसा सिस्टम होता है हमारा। अभी हम जस्ट स्मॉल वेल्स करा ताकि हमारा टाइम ज़्यादा स्पेंड ना हो, तो अब हम 15 करके ही छोड़ देंगे। वाओ, डिड यू जस्ट सी दैट? इस दफा डायरेक्टली ये वहीं से स्टार्ट हुआ आई गेस। ये कैशे कैशे वहीं से उठा लिया। नो, आई हैव टू अबैंडन दिस फिटिंग, लेट मी जस्ट रिकम्पाइल दिस मॉडल। वो डायरेक्ट 0.93 से स्टार्ट हो गया, वो लैंडिंग वहीं रुकी हुई थी, उसने वहीं से लैंडिंग स्टार्ट कर दी। फिर नाउ वी विल डू इट अगेन। देखा, वो डायरेक्ट वहीं से 0.93 पे जहाँ छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ना शुरू हो गया था। सो नाउ वी आर, क्योंकि यहाँ पे इपॉक स्टाइल होता है, यहाँ पे सिंगल इपॉक स्टाइल नहीं होता। 0.824, अब ये देखना 0.92 के करीब आके रुक जाएगा। देन इसको आप होने दें ट्रेन, हम नीचे देखते हैं थोड़ा, बहुत स्लोली एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। Alright, so as the model trains, the loss and accuracy metrics are displayed. The model reaches of an accuracy of about 0.91 or 91, जब usually 91 ही आता है, अगर 92 या 90 हो जाए तो उससे नाराज होने की बात नहीं है। 91 will be going to be average here. So evaluation of accuracy. Compare how the model performs the test data set. अब असल फैक्टर तो हमारा अब आया है, ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग का। क्या अब हम टेस्ट सेट से कंपेयर करेंगे जिससे हमें एक्चुअल टेस्ट एक्यूरेसी मालूम होगी। ये हमारी थी ट्रेन एक्यूरेसी, ठीक है, ये हमारी टेस्ट एक्यूरेसी नहीं थी। यहाँ को आपने दिमाग में रखना, ये हमारी ट्रेन एक्यूरेसी थी। ट्रेन एक्यूरेसी के अंदर अपने डेटा के अंदर वो एक्यूरेसी चेक कर रहा होता है। अब वो डेटा जो उसने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, हम उस पर चेक करेंगे टेस्ट एक्यूरेसी। अब यहाँ पे अगर हमने चेक करा किस तरीके से, टेस्ट लॉस एंड टेस्ट एक्यूरेसी, ये एक फंक्शन है, मेथड है मॉडल का, इसके बिल्ट इन है टेंसरफ्लो का। आप जो आपका जो भी नाम है मॉडल का, उस पर आप डॉट इवेल्यूट मेथड कॉल कर दो और यहाँ पे टेस्ट इमेजेस पास कर दो और टेस्ट लेवल पास कर दो, वर्बॉस रख दो आप 2, ठीक है, एंड देन वी गोना रन दिस, हम अपनी टेस्ट एक्यूरेसी चेक कर लेंगे। ऑल राइट, सो हेयर इट इज सेइंग कि 313 डेटा लिए मेरे ख्याल से सैंपल्स, उस पर बता रहा है कि हमारी एक्यूरेसी 0.89% है, जस्ट नियर टू 90%। हमारी ये एक्चुअल एक्यूरेसी कहलाएगी व्हेन वी यूज द टर्म ऑफ जनरलाइजेशन। यू मे हैव हर्ड दिस टर्म मेनी टाइम, जनरलाइजेशन, तो हमारा ये वही सिनेरियो है। So it turns out that the accuracy of the test data set is a little less than the accuracy of the training data set. This gap between training accuracy and test accuracy represents overfitting. Means कि अब हमारे पास गैप आ गया है टेस्ट सेट में और ट्रेनिंग सेट में, हमारे पास ओवरफिटिंग आ गई है। किस तरीके से मालूम कर रहे हैं हम, भाई वहां पे ये अच्छी खासी एक्यूरेसी बता रहा है, यहाँ पे थोड़ी कम एक्यूरेसी बताता है, इतना डिफरेंस नहीं है। ये खैर एक आपको बताने का मकसद ये था कि जब गैप ज्यादा आ जाए, सो देन इट दिस फैक्टर इज कॉलिंग इट एज ओवरफिट हुआ था वहां पे मॉडल। एक्चुअल एक्यूरेसी की ये थी। Overfitting happens when a machine learning model performs worse on new, previously unseen input than it does on the training data. An overfitted model memorizes the noise and details in the training data set to a point where it negatively impacts the performance of the model learning data. For immersion, see the following.
आज आप लोगों का ये होमवर्क है, आज आप लोगों को ये दोनों पढ़ने डॉक्यूमेंटेशन जो यहाँ पे मैंने लिंक दे दिए, ठीक है, आपने उसको जाके पढ़ना है रिगार्डिंग ओवर फिटिंग। तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि भाई 0.23% की हमारे पास ओवर फिटिंग आ रही थी, बट दैट्स नॉट अ बिग डील। इतनी ज़्यादा नहीं है कि भाई 70 या 80 का रेशो, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। Here what we're gonna do, we're gonna make some predictions with the model trained. You can use it to make prediction about some images, the model's linear logits, attach a softmax layer to convert the logits into probabilities which are used easier to interpret. अब याद है आप लोगों को एक दफ़ा मैंने कहा था कि क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास ये मालूम होता है कौन सी क्लास है कौन सी क्लास नहीं है। तो पता नहीं किसने मुझसे क्वेश्चन किया था, मुझे याद ही नहीं है, अगर भाई अभी यहाँ है तो बता दे नाम अपना। सो उसने मुझसे क्वेश्चन किया था हाउ वी गोना नोटिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ दोस क्लासेस, कि कैसे अब जैसे एक मैंने बहुत पहले लास्ट मेरा जो मोस्ट रिसेंट प्रोजेक्ट था वो एनएलपी जो साउंड क्लासिफिकेशन पे ये था कि अगर मैं कोविड हूँगा तो मुझे बोलेगा कि हाँ इतने % कोविड के चांसेस हैं। इट इज नॉट गोइंग टू टेल मी आप कोविड हो या नहीं हो, मैंने प्रोबेबिलिटी डाल दी थी। तो वो प्रोबेबिलिटी कैसे आती है, वी यूज सॉफ्टमैक्स फंक्शन, वी यूज सॉफ्टमैक्स लेयर हेयर, जो कि आपके यू कैन से बाइनरी डेटा को या क्लासिफिकल कैटेगोरिकल डेटा को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर रहा होता है। We have studied this one in our activation function, so you can recall that from there, that YouTube tutorial. So probability underscore model is equal to TensorFlow dot keras dot sequential. यहाँ पे हमने अंदर डाल दिया मॉडल कोमा टेंसर डॉट keras dot layer dot softmax। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, जब हमारे पास मॉडल भी है या हमारे पास हमने अपना मेथड भी डाल दिया है, ठीक है, ये हमारा मॉडल है, पूरा पूरा मॉडल का नाम जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये जाएगा। ये पूरी एक लेयर बन रही है सॉफ्टमैक्स लेयर के साथ, कि हमने यहाँ पे एक मेथड कॉल करा दिया और यहाँ पे हमने ये कॉल करा दिया। अभी क्या सीन हो रहा है यहाँ पे, अगर हम थोड़ा ऊपर चलें और अगर अपनी लेयर्स देखें तो हमारे पास तमाम लेयर्स इस एक स्क्वायर ब्रैकेट में आती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एज अ 2 लेयर काम कर रही है कि मॉडल आ गया खुद एक अपनी लेयर के अंदर, और ये हम एक नया मॉडल तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी मॉडल, ठीक है। यहाँ पे हमने एक मॉडल खुद डाल दिया और उसके बाद हमने मॉडल डाल दिया सॉफ्टमैक्स की लेयर डाल दी है, सिंपल सॉफ्टमैक्स लेयर विद नो ऑल्टरेशंस। अब हमारे पास एक मॉडल नया तैयार हो गया जो कि हमें प्रिडिक्शंस बताएगा, ठीक हो गया, ये मॉडल तैयार हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, वी व्हाट वी गोना डू, प्रिडिक्शंस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मॉडल डॉट प्रिडिक्ट टेस्ट इमेजेस। हमारे पास अभी हम वो मेथड मैट्रिक्स डेवलप नहीं करने लगे कि वी गोना हैव दैट कंफ्यूजन मैट्रिक्स के इसकी मुझे सही प्रिडिक्ट हुई है तो मुझे सही प्रिडिक्ट नहीं हुई। हम वो आप कर सकते हो, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग टू डू and I will love to see that in Discord. Akash have done very good work recently. Ikra has done very good work recently. So I will do. I will love to see these things there in Discord. यहाँ पे हमने prediction store करा दी है in a probability format. And here we are going to see our very first prediction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are a total of 10 values. Here the model has predicted the label for each image in the testing set. Let's take a look at the first prediction. ये हमारी फर्स्ट प्रेडिक्शन है, आप लोगों की समझ में नहीं आ रही होगी, so let's just leave that right now. A prediction is an array of 10 numbers. They represent a model's confidence. हमारे मॉडल का कॉन्फिडेंस कितना है that the image correspond to each of the 10 different articles of clothing. You can see which label has the highest confidence value. ठीक है, हमारे पास किसकी कौन सी कॉन्फिडेंस वैल्यू है। अभी क्या था बेसिकली जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे 10 वैल्यूज आ गई, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। क्या है? कॉन्फिडेंस है। आप फेशियल रिकग्निशन सिस्टम करते हो, आपको बोलेगा भाई आप 79% हुजैफा हो, आप 65% अयान हो, तो वो कैसे बता रहा है आपको? टोटल जितनी भी क्लासेस होती है ना वो सारी कंपेयर हो रही होती हैं बाय यूजिंग द सेम थिंग, प्रिडिक्शन मॉडल, प्रोबेबिलिटी मॉडल के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास वो देखेगा कि कौन सी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है। हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये आ रही है 9.75371। अब ये वैल्यू कौन सी क्लास की है? ये है 9 क्लास की। तो जो सबसे हाईएस्ट होती है ना हम वो डिस्प्ले करते हैं। कैसे करेंगे? वी गोना सेट के numpy डॉट argmax prediction 0, ये हमें उसका आर्ग्यूमेंट रिटर्न कर रहा है कि 9। हमें 9 यहाँ पे हमारे पास आर्ग्यूमेंट आ गया। अब देखिएगा इसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कराऊंगा अपने क्लास नेम के अंदर। यहाँ पे मैंने कह दिया फिर टेस्ट लेवल 0 और 9। कैसे पता चला मुझे ये
कि मेरा मॉडल ने जो प्रिडिक्ट किया वो वाकई में 9 था। इसने कहा कि भाई सबसे ज्यादा जो 9 क्लास है ना हमारी, जो सबसे लास्ट क्लास है, सबसे ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस उस पर, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसने उस पर दी है। जब हमने चेक किया टेस्ट का लेवल, उसी नंबर डाल के यहाँ पे 0 डाला था, यहाँ भी 0 डाल दिया, तो यहाँ पे भी हमारा टेस्ट लेवल क्या रिटर्न कर रहा है, ना रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से हम मालूम करते हैं अपनी हर इमेज की प्रोबेबिलिटी। ये समझ में आ गया आप लोगों के? लेट मी नो गाइस। Did we separate the train and test data before? Yes. Why Jabbar Ali have asked me when will we be start? We have already started more than an hour ago. Why you are asking right now, man? All right. So, did we separate the train and tested data before? मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऊपर जब मैं डेटा इंपोर्ट किया था तो हमारे पास दो डिफरेंट वो बने थे, यू कैन से टेस्ट सेट एंड ट्रेन सेट। तो वहाँ पर पहले से ही हमारे पास दो डिफरेंट वो हैं, sets बने हुए हैं। Now we'll move towards more thing. Before that, let me just do one more thing here. Wait. All right. I was just increasing the time of the attendance. All right. तो भाई यहाँ पे हमारे पास ये इसको हट, ओके, यहाँ पे हमारे पास ये हो गया है। हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 9th क्लास की आई थी, उसने रिटर्न कर दिया कि भाई सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ की आ रही है। एंड देन वी आर हैविंग द सेम वन, मतलब हमारी जो प्रोडिक्शन हुई है बिल्कुल सही हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे ये वाला काम। अब ये वाला काम कैसे होगा वो हम देखते हैं। ये थोड़ा टफ काम है। आई वुड लव इफ यू गाइस, वो हो बहुत सारा काम है। सो आई विल ट्राई टू बी फास्ट, सो डोंट वरी, हम सारा कवर कर लेंगे। So graph this to look at the full set of 10 class prediction. अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है डेफ लॉर्ड इमेज का। यहाँ पे हमने एक आई ले लिया है। ये आई क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको देखते हैं अभी बाद में। यहाँ हमने प्रिडिक्शन एरे ले लिया है, यहाँ पे हमने ट्रू लेबल ले लिया है, यहाँ पे हमने इमेज ले लिया है। ठीक है, क्या कर रहे हैं वो सब देखेंगे। ट्रू लेबल कॉमा इमेज इज इक्वल टू ट्रू लेबल आई इमेज। ये हमने सारी एक ही चीज, एक ही लाइन में सारे एक दूसरे पे डिफाइन कर दिए हैं, और ऐसा हो सकता है। तो अब ट्रू लेवल जो होगा हमारे पास उसमें जा रहा होगा, और इमेज जो होगी हमारे पास उसमें जा रही होगी। ट्रू लेवल क्या है, जो हमारे पास लेबल यहाँ से टेस्ट लेवल से आ रही होगी, उसको हमने कहा कि एक्चुअल लेबल्स हमारी ये हैं। वो लेबल हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा, और ये हमारे पास 1 यहाँ पे आ रहा होगा। हमारे पास प्रेडिक्शन का एरे हमारे पास आ रहा होगा। हमें ग्रिड नहीं चाहिए, हमें एक्सटिक वाइटिक चाहिए। हमने इमेज शो करा दी, हमारे पास यहाँ पे इमेज शो हो जाएगी। लेकिन अब काम है उसके ऊपर लेबलिंग का। लेबलिंग कैसे होगी, हमारे पास हमने बोला, हमारे पास इमेज शो होने के बाद हमने बोला प्रिडिक्टेड लेबल क्या है हमारा, हमने बोला numpy डॉट आर्गमैक्स और प्रिडिक्शन एरे। अब उस एरे के अंदर जो हमारा सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू हमारी सबसे मैक्सिमम होगी किसी भी आर्ग्यूमेंट पे, वो हमारी सबसे ज्यादा, वो क्लास हमारी सबसे हाई प्रिडिक्टेबल क्लास होगी। ठीक है, तो ये उसको हमारे पास स्टोर करा देगा प्रिडिक्टेड लेबल के अंदर। देन इफ प्रिडिक्टेड लेबल इज इक्वल टू ट्रू लेबल, कलर इज इक्वल टू ब्लू, एज कलर इज इक्वल टू रेड। यहाँ पे दिखाऊं, अगर हमारी जो प्रिडिक्ट क्लास है वो सही प्रिडिक्ट करी है उसने, तो वो कलर ब्लू बार ड्रॉ होगा, अदरवाइज वो क्या ड्रॉ होगा, रेड ड्रॉ होगा। हमने यहाँ पे यही कहानी लिखी है भाई। ठीक है, देन वी आर डूइंग, इसको बाद में कोड समझते रहेगा, डोंट वरी। प्लॉट डॉट एक्स लेबल्स, यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग की हुई है। क्या प्रिंट कर रहा है, बेसिकली पैरा कर्ली ब्रैकेट प्रिंट कर रहा है क्लास नेम। क्लास नेम वो जो उसने प्रिडिक्ट की थी। ठीक है, फिर उसने उसकी क्या क्या किया, हमने जो हमारे पास वैल्यू 0.91 होगी या 0.92 जो भी हो, हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हम उसको कह सकें 94 या 95%। ठीक है, और हमने उसके 2 डेसिमल्स रखे, हमने नहीं 2 डिजिट्स हमने रखे, और उसके बाद मेरे ख्याल से हमने एक भी डेसिमल नहीं रखा है। एम आई राइट? यस, आई एम एब्सोल्युटली राइट। हमने एक भी डेसिमल नहीं रखा है, सब 2 डिजिट्स हमारे पास वो होंगे। 100% किसी की होगी नहीं, मुझे पता है। और यहाँ पे हमने परसेंट रख दिया। ठीक है, परसेंट रखने के बाद मतलब हमारे पास जैसे 98 प्रिंट होगा, उसके बाद हमारे पास परसेंट भी प्रिंट होगा। उसके बाद वो बोलेगा क्लास नेम ट्रू लेवल, जो एक्चुअल लेवल होगी हमारे पास वो भी आएगी। और कलर हमने क्या दे दिया, जो हमारे पास कलर्स यहाँ मौजूद हैं। कलर कैसे पता चलेगा, कंडीशन के ऊपर है भाई, अगर लेवल सही होगी तो ब्लू है, अदरवाइज रेड है। तो यहाँ पे जब हमारा ड्रॉ हो रहा होगा ना, तो वो इस सिनेरियो में ड्रॉ हो रहा होगा। इस पूरे को हमें भी देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। देन हमारा यहाँ पे एक फंक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने इमेज प्लॉट कर दी है और लेबलिंग वेबलिंग सब कर दिया उसकी, जो कि हम यहाँ नीचे कर रहे हैं।
इमेज प्लॉट हो गई और लेबलिंग सारी हो गई ब्लू। ये ब्लू कलर से हमारी लेबलिंग हो गई। वट आर वी डूइंग हेयर मैन, यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास? उसके लिए हमने एक अलग से फंक्शन बना रखा है, डेफ प्लॉट वैल्यू एरर। ठीक है, उसमें हमने क्या दिया है, सिंपल एक प्लॉट बार प्लॉट किया होगा हमने यकीनन, वही टू लेबल डाल दी, फॉल्स ग्रेड हमने एक्स टिक्स कर दिया, रेंज 10 हमने रेंज दे दी है कि 0 से लेकर 10 तक की एक रेंज चली जाए, मतलब 0 से लेकर 9 तक की आएगी, 10 इज एक्सक्लूसिव हियर। तो वाई टिक्स पर हमने एम्प्टी लिस्ट डाल दी है। दिस प्लॉट इज इक्वल टू प्लॉट डॉट बार रेंज 10। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक पहले ही से ही ना बार प्लॉट हो जाएगा जिसकी रेंज क्या है हमारे पास 10, हमने एक्स पे हमने 10 दे दिया है, हमने एक्स पे 10 दे दिया, 10 कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं। हम चाहते थे यहाँ पे सिंपल लिख सकते थे 0 1 2 3 4 करके 10 तक डिफरेंट कैटेगरी डिफाइन करने के लिए, लेकिन जब हम रेंज यूज कर सकते हैं विच कैन आउटपुट 0 to 9, तो सिंपल हमने यहाँ पे रेंज 10 लिख दिया। देन हियर वी आर हैविंग प्रेडिक्शंस एरे। ठीक है, यहाँ प्रिडिक्शन एरे के अंदर हमारे पास वो पूरा का पूरा एरे आएगा जो कि इसकी वैल्यू हमें यहाँ प्लॉट करनी होगी, वो हम यहाँ देखेंगे। प्रिडिक्शन एरे आया, यहाँ पे हमारे पास कलर आया, हमने कलर दे दिया यहाँ पे इसको #7777 जो कि ब्लू रिप्रेजेंट करेगा एट द एंड। देन वी हैव मेंशन प्लॉट डॉट वाई लिम। व्हाट इज वाई लिम? वाई इज लिम इज द लिमिट्स ऑफ आवर वाई एक्सेस। तो यहाँ पे ना कोई भी 1 से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब 100% एक्यूरेसी से ऊपर नहीं जाने की जरूरत, उसको लिमिट दे दिया हमने उसको। देन वी आर हैविंग प्रेडिक्टेड लेबल इज इक्वल टू numpy डॉट argmax। अब लेबल मालूम करना है, हमारे पास पूरा का पूरा एरे आ गया था, अब उसके अंदर से हमें लेबल ही मालूम करना है, तो हमने आपसे लेबल भी हमने मालूम कर लिया कि भाई जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का लेबल है वो कौन सा है, ये वही वाला काम यहाँ पे हो रहा है। देन व्हाट वी आर डूइंग हियर, दिस प्लॉट प्रेडिक्टेड लेबल डॉट सेट कलर रेड एंड दिस प्लॉट टू लेबल डॉट सेट कलर ब्लू। अब यहाँ पर अगर आप देखो, थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ करके दिखाना चाहूंगा कि प्रिडिक्टेड टेबल हमारे पास हमने रेड कलर सेट किया हुआ था और ट्रू लेबल हमारे ब्लू सेट की हुई थी। ओके, लेकिन हमारे पास चूंकि दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं, हमारे पास वो रेड नहीं बन रहा, वो उसी के ऊपर ओवरलाइड है। तो दैट इज द रीज़न। यहाँ पे अगर आप मैं इसको ये हटा दूँ ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। लेट मी सी। हम सब प्रिडिक्टेड करेंगे, हम लोग हमें पता ही नहीं है कौन सा डेटा क्या है। ठीक है, और हम यहाँ पे ठीक हो गया, हमने ब्लू हटा दी थी तो रेड आ गई। अब रेड कैसे आ गई, बता रहा है कि भाई प्रिडिक्टेड लेवल कहाँ सबसे ज़्यादा प्रिडिक्शन हुई है, 98% प्रिडिक्शन, अभी इसने 100% प्रिडिक्शन कर दी, वाह। तो ये थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन रेट तो चेंज होते रहता है, तो उसने 100% प्रिडिक्शन यहाँ कर दी है, तो ये पूरा का पूरा रेड हो गया यहाँ पे इसी वजह से। सो दिस इज हाउ वी गोना वर्क हियर। ठीक है, देन हेयर वी आर हैविंग आई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या करा बेसिकली, जितना भी हमने फंक्शंस बनाए थे ना, हम यहाँ पे सिंपली इसको कॉल कर लेंगे। आई 0 दे दिया हमने यहाँ पे, प्लॉट डॉट फिगर क्या कर दिया हमने 6/3, अब मैंने ये प्लॉट की फिगर डाल दी है। प्लॉट डॉट प्लॉट 6/3 कर दिया ना, तो हमारे पास ये दोनों इमेजेस एक ही प्लॉट में आ रही हैं, तो ये 3/3 का एक प्लॉट बन रहा है हमारे पास इन द एंटायर प्लॉट टेम्पलेट। फिर सब प्लॉट कर दिया 1 to 1, ओके, साइज दे दिया मैंने उसको, प्लॉट इमेज कर दिया। ये सारा आप पढ़ चुके हो पुरानी वर्कशॉप में डेटा विजुअलाइजेशन में, अगर आपको अभी भूल गया हो तो वहाँ पे जाकर रिव्यू कर लीजिएगा। प्लॉट इमेज आई प्रिडिक्शंस आई टेस्ट लेबल टेस्ट इमेजेस, और प्लॉट और सब प्लॉट 1 to 2 हमने यहाँ पे भी इसके लिए दे दिया, और यहाँ पे अपना वैल्यू एरे भी डेवलप। सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं करना, फंक्शन उठा के यहाँ कॉल करा दिया, आई लिखा, प्रिडिक्शन दिया, टेस्ट लेबल दिया, जो के ऊपर हमने आर्ग्यूमेंट दिए हुए थे वो यहाँ पे हमने पास करे, और हमारे ये प्रिडिक्शन वेरीफाई हो गई है। अब ये कह रहा है ये एंकल बूट है, तो भाई वाकई हमें एंकल बूट दिख भी रहा है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेम वी हैव डन फॉर अनदर कोड एज वेल। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने I12 ले लिया, मतलब 12 सैंपल होगा ये। ठीक है, 12 सैंपल है, तो हमने 12 सैंपल को जब यहाँ पे रन किया, तो यहाँ पे बोल रहा है प्लॉट डॉट फिगर फिक्स साइज 6/3, वही काम है यहाँ पे। अब आप यहाँ देखोगे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है, यहाँ इसको ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा अच्छे से। इस सैंपल ही कुछ इस तरीके से है, ये थोड़ा सा चेंज आया, तो इसको स्निकर था ये इसको क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, बैक प्रिडिक्ट कर रहा है मेरे, नहीं एक मिनट, हाँ बैक प्रिडिक्ट कर रहा है, और था क्या, ये स्निकर था। ब्रैकेट में जो वैल्यूज आ रही है हमारे पास वो क्या है, जो उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। बैक हमारे पास क्या है, जो उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी नहीं है। ये हमारे पास ये वो वैल्यूज आ रही हैं। नाउ हेयर 0 1 2 3 4 5 6 9 8,
अब अगर हम यहाँ पे प्रिडिक्शन एरे देखें ना, तो उसने यहाँ पे काफ़ी हाई वैल्यूज दी हुई हैं 5 और 7 क्लासेस को, जो कि कुछ होंगी कोई ना कोई चीज़। तो इसकी वजह से हमारी इसकी एक्यूरेसी गिर गई है, और यहाँ पे इस सैंपल के ऊपर ये अच्छी एक्यूरेसी नहीं दे रहा। जाहिर सी बात है, हमारे पास 11% सैंपल्स ऐसे होंगे जिसपे अच्छी एक्यूरेसी नहीं आएगी। So let's plot several images with their prediction. Note that the model can be wrong even when very confident. Yes, of course. यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया, नंबर ऑफ रॉज डाल दिए, नंबर ऑफ कॉलम डाल दिए, नंबर ऑफ इमेजेस डाल दिए, भाई इतनी टोटल हमारी इमेजेस होंगी, और हमने सिंपल क्या किया, फिगर साइज इंप्लीमेंट कर दिया कि हमारा ये फिगर साइज है। ये प्रोफेशनल तरीका होता है, आप पहले एक टेम्पलेट डेवलप कर लो। देन फॉर आई इन रेंज नम इमेजेस, अब नम इमेजेस हमने यहाँ कर दिया सिंपल भाई, और यहाँ कोड चल रहा है प्लॉट और सब प्लॉट का। यहाँ पे वो नम जो जिस रो पर आता जाएगा वो उस रो पे आके हमारी इमेज प्रिंट होती चली जाएगी। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि एक इमेज के बाद वो 2 वक्फा का गैप दे, ऐसा ना हो कि वो जैकेट इस ग्राफ के ऊपर आ जाए, तभी हमने उसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ। एंड देयर वी आर हैविंग प्लॉट इमेज, हमने फंक्शन कॉल करा दिया, प्लॉट डॉट सब प्लॉट का फंक्शन कॉल करा दिया, प्लॉट वैल्यू का फंक्शन कॉल करा दिया। ये तो हमारी दो चीज़ें जो थी हमारी उसकी थी, इमेज उसकी डिस्टेंस के लिए थी, कोऑर्डिनेट्स के लिए थी, और ये हमारे फंक्शन प्लॉटिंग के थे। तो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज प्लॉट कर ली, कहाँ से कहाँ तक प्लॉट कर ली है, फॉर आई इन रेंज नम इमेजेस। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास देखते हैं किसकी प्रिडिक्शन अच्छी आई है। तो मैं थोड़ा तेजी से इसलिए लेकर आ गया हूँ ताकि आप लोगों को ना ज़्यादा देर भी ना हो, मैं फारिग कर दूँ अब, और ये आप लोगों को कोड समझ में आ गया है, बस हम लोगों ने इसमें थोड़ा एल्गोरिथम डाल के चला दिया आगे। सो हेयर वी कैन सी कि हमारा एंकल बूट 98% प्रिडिक्ट हो गया है, पुल ओवर 100% प्रिडिक्ट हो गया है, ट्राउजर हमारा 100% प्रिडिक्ट हो गया है, ट्राउजर भी 100% प्रिडिक्ट हो गया है, शर्ट 79% प्रिडिक्ट हो गई है। सही है, मतलब कोई रेड नहीं आ रहा, रेड ओ यहाँ रेड आ गया। यहाँ क्या बोल रहा है कि भाई उसने हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसी और क्लास की दे दी, किसकी दे दी, सैंडल की दे दी, वो उसको सैंडल समझ रहा है। सैंडल कुछ इस तरह की होती हैं, इसने उसको सैंडल समझ लिया, जबकि था क्या है, ये स्नीकर था। मैं ये देख रहा हूँ कि जो उल्टे स्नीकर्स आ रहे हैं ना, ये उनको गलत कर रहा है बार बार। तो हम इसको कर सकते हैं बाद में सही। हम क्या कर सकते हैं कि डेटा सेट को घुस के एक दो तरह की शेप स्नीकर की अलग अलग स्नीकर के हिसाब से ट्रेन करते हैं। कुछ इस तरह का कुछ तरीके होते हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, तो इसने यहाँ पे तो गलत क्लासीफाई किया है, और बाकी सब चीज़ें हमारे यहाँ पे सही क्लासीफाई हो गई हैं। देन वी गोना यूज अ ट्रेन मॉडल, हम ग्रैब एन इमेज फ्रॉम द टेस्ट डेटा सेट, हमने सेकंड सैंपल उठा लिया है, शेप यहाँ पे मालूम कर ली, अब इसको हम थोड़ा प्लॉट कर लेंगे। ओके, एक्सपेंड डायमेंशंस, हमारे पास क्योंकि टेस्ट इमेज पे हम डायमेंशन कम कर दी थी, हमने हमने एक डायमेंशन और बढ़ा, डायमेंशन कम नहीं थी, बस एक डायमेंशन थी हमारे पास, हमने अब एक डायमेंशन और बढ़ा दिया 1। क्यों बढ़ाइए, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे वही काम हो रहा है जो कोड हम प्रिडिक्शंस के लिए निकालते हैं। प्रिडिक्शन सिंगल इज इक्वल टू प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, यहाँ पे आप इमेज डालोगे, यहाँ पे आपको एक पूरा का पूरा एरे रिप्रेजेंट करके दे देगा। अब उसी एरे को आप यहाँ पे डाल के देख लोगे तो ये आपके पास एक सैंपल के ऊपर बता देगा कि वो सैंपल क्या था। यहाँ बता रहे पुल ओवर है, 2 दे रहा है और पुल ओवर दे रहा है। अब आपका काम है कि उसको विजुलाइज करो, ठीक है। विजुलाइज करने के बाद देखना कि क्या ये वाकई पुल ओवर था या नहीं। तब विजुलाइज कैसे करोगे, विजुलाइज कोड मैं आपको ऊपर दे चुका हूँ। सिंपल वो सैंपल उठाना आपने, और कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। सिंपल ये कोड डालना है और आपने उठा कर देना है। आप चले अभी अभी कर लेते हैं ये काम भी, क्या याद करेंगे आप लोग। अब मीन वाइल प्लीज ड्रॉप द क्वेश्चंस, आई एम जस्ट स्विचिंग टू क्वेश्चंस प्रीटी सून। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कोड सेल बना के, ओके 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 ओके, और ये यहाँ पे रन करा भी है या नहीं रन करा, हाँ यहाँ के बाद रन नहीं करा ना, तो इसको रन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो भाई हमने इसको रन कर लिया था, अभी देखते हैं कौन सा पुल ओवर, अभी पुल ओवर पे, ओके लेट मी जस्ट यूज दिस। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बहुत बड़ा सा बार बन गया इधर, और ज़रा अगर हम देखें इसको, टेस्ट इमेज क्या थी हमारे पास, कौन सी इमेज थी, टेस्ट इमेज 2 थी क्या, कौन सी थी, लेट मी सी इट अगेन।
हाँ इमेज में है हमारे पास ना, वो बस सिंपल सही है। तो IMG लिख लेते हैं सिंपल, हमारे पास वो इमेज में स्टोर हुआ हुआ है IMG। एंड here we gonna know what kind of error we are having। ओके ओके ओके, यहाँ पे हमने बढ़ा दी थी एक डायमेंशन, हमें डायमेंशन नहीं बढ़ानी थी, पूरा यही उठाना पड़ेगा अब, क्योंकि विजुअलाइजेशन में सब 2 डायमेंशन चाहिए ना, 1 डायमेंशन थोड़ी चाहिए, मतलब 3 डायमेंशन थोड़ी चाहिए। तो 3 डायमेंशन हमने क्यों लिए? एक मिनट, जस्ट बिकॉज इट एक्सेप्ट 3 डायमेंशंस जो हमने बार प्लॉट के यहाँ पे हमारे पास। तो ये पुल ओवर ही है, ये आप देख सकते हो, एक हुडी टाइप है, ये पुल ओवर है। सो वी हैव डन आवर वर्कशॉप टुडे एंड वी आर एट एंड। एनी क्वेश्चन? सो गाइस एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो। ओके, यहाँ पे तो इस दफा पूरे रेड बार बन गया, इसने ना असल में उसके ऊपर ले आया ये, यहाँ पे हमने कलर दिया हुआ था क्या कोई? प्लॉट वैल्यू एरे में हम दोबारा जाते हैं, प्लॉट वैल्यू एरे, प्लॉट वैल्यू एरे, एक मिनट कहाँ गया प्लॉट वैल्यू एरे? अच्छा मैंने यहाँ पे क्या कलर दिया हुआ था जरा हम देख लें। ऑल राइट, अच्छा बस हमने कलर यहाँ पे चेंज बाद में किया है मेरे ख्याल से, देयर इज द रीजन। पहले ब्लू था ना, हमने यहाँ बाद में रेड किया, तो ये मैं जब 12 रन किया ना तो ये रेड हो गया है, ये ब्लू थे पहले, अब ये सारे रेड हो गए। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप ब्लू करना चाहो ब्लू कर दिएगा। ये पहले ब्लू ही था, इसको रन नहीं किया हुआ था मैंने, ठीक है यार, तो मैंने जब रन किया ना तो ये रेड हो गया फिर उसके बाद। सो वी हैव डन एवरीथिंग, एनी फर्दर क्वेश्चन? All right. So there are so many students from Sir Said University Engineering Technology which have joined us as well, and they are having problem that उनके examination start हो जाएंगे 2nd November से. So guys don't worry. On 1st November there will be our last workshop. Despite looking towards कि हम इसको 12th level को हम workshop conduct कर रहे हैं, so of course फिर हमारा कोई issue नहीं होगा. We're gonna end it 1st November inshallah. All right guys, any question? Any question? Any question? सो एनी क्वेश्चन यहाँ वैसे ये रेड मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैंने वैसे ना ब्लू रिमूव कर दिया था। यहाँ पे मेरे पास अगर आप देखो इतने क्वेश्चन पूछ लें, यहाँ पे मेरे पास अब प्रिडिक्टेड लेवल के ऊपर कलर आ रहा है, जो एक्चुअल लेवल थी ना उसका कलर नहीं आ रहा, मुझे नहीं चाहिए उसका कलर, मुझे सब प्रिडिक्टेड चाहिए, ठीक है, तो प्रिडिक्टेड का आ रहा है, तो यहाँ पे दैट इज व्हाई वी आर हैविंग रेड। पहले यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई थी जो आप बाद में यहाँ पे देख लीजिएगा, मेरे गिटअप पे डली हुई है वो लाइन, और वो इस ब्लू की थी, उस ब्लू से पता ये चल रहा था कि एक मिनट, नहीं ये नहीं, हाँ यही है सॉरी। ओके, यहाँ पे हमने ब्लू सेट किया होता तो ट्रू लेवल को भी प्लॉट कर रहा था, मैंने कहा अभी ट्रू लेवल को प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, अभी सब हम लोग प्रेडिक्ट लेवल को प्लॉट कर लेते हैं, तो ये ब्लू रेड का चक्कर वो था, तो मैंने यहाँ से ब्लू को रिमूव कर दिया था। ओके, एनी क्वेश्चन गाइस? या महजबीन हैज said the same thing me. ओके, एनी क्वेश्चन गाइस? क्वेश्चन क्या रियल टाइम मेरे पास आ नहीं रहे हैं, क्या इशू है आज बहुत क्वेश्चन नहीं आ रहे? ओके, so if you are guys having not any questions, so I'm gonna end this class. Let me see what I'm gonna teach you tomorrow. All right, okay, so we may gonna do some TensorFlow things और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख लेंगे, या तो कल हम बेसिक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, या फिर हम लोग कल एडवांस इमेज क्लासिफिकेशन देख लेंगे, ठीक है, इमेज प्रोडिक्शन। अच्छा किसने पूछा है? अयान ने पूछा है वर्बोस क्या होता है। वर्बोस इज काइंड ऑफ थिंग कि आप कितने at a time multi-thread use करो, so we were using 2 threads there. That's the only thing verbose you should have to know about right now. Verbose is basically related to multi-thread programming. तो वहाँ पे मैं जो verbose 2 mention किया था, that was for multi-thread programming, and we're gonna learn this thing in detail pretty soon. All right, guys. So okay. So since we are not having any questions, so all right. Allah Hafiz. Bye bye.